of education for Muslims in India today. एक बात, what Mr. P.A. Inamdar had said, that today the power is in your hand. You see, RTE is providing you the requisite power to make your future strong and resilient. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे इस मुल्क में एक ऐसा कानून है, RTE, राइट टू एजुकेशन, जो हमारी कम्युनिटी को रिजिलियंट बना सकता है, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कर सकता है, सोशली अपवर्ड ले जा सकता है और हमारे सारे मसाइल को हल कर सकता है. पॉलिटिकल सिस्टम, in my opinion, and I'm sure many will agree with that, it will not be a hindrance for the growth of the community. Now I would request Mr. Farooq, MS Farooq, the General Secretary of AIMES, to read out a message from Governor of Uttarakhand, Mr. Dr. Aziz Qureshi, because he was supposed to be here and to be the chief guest for this conference, but unfortunately for very important commitments he had, he was not able to be here. Kindly, Mr. Farooq, please. Assalamu alaikum. I'm happy to read the message received from Dr. Aziz Qureshi, Governor of Uttarakhand. Message goes like this. I'm happy to know that the Andhra Pradesh unit of the All India Muslim Educational Society is holding an educational conference at Hyderabad on April 21st, 2013. It is the need of the hour to make Muslims aware about the importance of education. I hope that the need for educating Muslim girls will be discussed at the conference, as educating a girl child is a way to educate the whole community. If a community is educationally backward, it also becomes economically backward, and the economic backwardness leads to social backwardness, which in turn reinforces educational backwardness. In today's knowledge-based society, it is extremely important to ensure that education is taken seriously by the Muslim community. I wish the conference all success. Signed by His Excellency Dr. Aziz Qureshi. Thank you. I would now take a small pause here for allowing the dignitary, Mr. Laljan Pasha, who had come when the speech of Mr. P.A. Inamdar had started. I would request Mr. Bashiruddin Ahmed, please, to give a bouquet to Mr. Laljan Pasha, please, because these are small things, but they go a long way. We have to honor people who have been serving our society, our community, and the nation, and that's what we have to do, and we have to follow this. That's very important. Mr. Jalal Jan Pasha, sir, please. He is a member of parliament, former member of parliament, and leader of TDP, and a very humble person, and a very good example for how a politician should be also. Yeah. Now, we have with us Mr. Aziz Pasha, the member of parliament, former member of parliament from CPI. Also, I would request Mr. Khalilur Rahman to give a bouquet to him, and I will call him now for speaking on a small subject. I really thank Mr. Laljan Pasha and Mr. Aziz Pasha for taking out their time and to be present here for sharing their views. Mr. Aziz Pasha will be speaking on how sincere, because he is a politician, I want him to tell, because it's not a topic which he had selected, and he was very keen that he has to attend this function. He was not very keen on speaking. I have to tell you that also. How sincere are our governments in states and at center for implementation and funding schemes and provisions for uplifting minorities of India, and in particular the Muslims of India? Shukriya Adil sahab. सदर जलसा जनाब आसिफ पाशा साहब, शहन नशीन पे बैठे हुए सबसे पहले मेरे दोस्त पार्लियामेंट के लाल जान पाशा साहब, जफ़र जावेद साहब, अहमदुल्ला साहब, अहमदुद्दीन साहब, नईमुल्ला शरीफ साहब और दीगर मुदब्बरीन और मुफक्रीन, ख़वातीन हज़रात, अभी भी मैं बड़े संजीदगी से
जनाब इनामदार साहब की स्पीच सुन रहा था। उन्होंने बहुत सारे अपने जो एक्सपीरियंस जो बहुत ही मालूमाती भी थे और एक लिहाज से बड़े कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी थे। मैं गौर से सुन रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई इसलिए कि मेरे हद तक मैं समझ रहा हूँ कि सारे हिंदुस्तान में कुछ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस तंजीम अगर कुछ काम कर रही हैं तो केरला में एक है, केरला में भी लोगों में एक जज्बा है और महाराष्ट्र में है। अब आहिस्ता आहिस्ता आंध्र प्रदेश में भी वो जज्बा आगे परवान चढ़ रहा है समझिए। तो हमको उसी दिन की तलाश है जबकि हर स्टेट में लोग वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाकर एक जज्बे के तहत काम करें। मैं सबसे पहले अपनी बात का आगाज़ करूंगा कि यूँ तो हिंदुस्तान में मुसलमान हुक्मरान जो ना 1000 साल तक हुक्मरानी करें, 1000 साल कोई मामूली बात नहीं है। मगर अफसोस की बात है कि जो हुक्मरान जो थे उनके लिए तालीम कोई एजेंडा ही नहीं था। वरना आज कोई कौम जो अगर 100 साल या 50 साल भी हुक्मरानी करती है तो उनके जितने भी सिटीजन्स हैं उनके ज़ेर साया तमाम लोगों को फ़ायदा होता है। मगर आज हम देख रहे हैं कि किस जहालत और हमारे पास जो अनएजुकेशन है उसको देख के हमको बड़ा ये होता है। खैर आज़ादी के बाद हमारे साथ जो इम्तियाज़ बरता गया और उसके बाद हम देख रहे हैं जिसका नतीजा आज ये है कि बहुत ही कस्मोपुरसी की हालत में ये कौम है। मैं अपनी बात का आगाज़ एक बहुत ही एक ऑब्जर्वेशन समझे, मुशाहिदा जो हमारे यहाँ के स्टेट के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, उन्होंने जब मैं उनके पास गया, वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग है, तो मैं ये पूछने के लिए गया कि भाई अगले साल मुसलमानों के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए क्या बजट है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग ने कहा कि फंड या बजट फंड के बारे में मत सोचिए, फंड का कोई भी जो है ना देयर इज नो डर्थ, बिल्कुल खाली आप रोड मैप दीजिए कि कैसे आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और पूरे डाटा के साथ दीजिए। मैं जो है ना उन तमाम चीज़ों को लेकर चीफ मिनिस्टर के पास बैठकर जितना जो है ना ये अलॉटमेंट करना बजट एलोकेशन मैं कराऊंगा। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात कही कि भाई अजीज़ पाशा साहब कि हर तबके का कम्युनिटी का एक प्रेशर ग्रुप है, एससीज, बीसीज, एसटीज, हर हफ्ता या 15 दिन में वो लोग एक मेमोरेंडम लेके आते कि साहब ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, डिमांड लेटर्स लेके। भाई ताज्जुब ये होता है कि मुसलमानों को कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। और वो भी कौन बोल रहा है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग, जो पूरे स्टेट की प्लानिंग उसके हाथ में है, वो बता रहा है कि मुसलमानों को कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। कई जमाने के बाद एक आदमी आप आके पूछ रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा अभी भी चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम चल रहा है राचा बंडा, मैं चूँकि लास्ट ईयर मिला था, वो चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम चल रहा था, तो इसमें सैकड़ों जो प्रपोजल्स आए मुसलमानों की तरफ से पूरे स्टेट में चीफ मिनिस्टर, सिर्फ 3 प्रपोजल है, उसमें 2 प्रपोजल शादी खाने के लिए है, 1 प्रपोजल पॉलिटेक्निक के लिए है। तो ये है हमारा सोचने समझने का और हमारी हरकत कितनी है, से अंदाजा लगाइए। खैर ठेकेदार तो हमारे पास बहुत है, और वो ठेकेदार क्या करते हैं आप लोगों को मालूम है। खैर मैं कोई रिएक्ट कर रहा हूँ कि मुसलमानों का कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है ना एक सेमिनार रखिए, पूरे स्टेट से हर डिस्ट्रिक्ट से 2 रिप्रेजेंटेटिव आने जाने का किराया मैं दूंगा, और जो है ना पूरा ये हाल वगैरह मैं दूंगा, दोपहर खाना अरेंज करूंगा। उसके बाद उसको ना 3 ग्रुप्स में कमीशन में बांटेंगे, और वो कमीशन की जो रिपोर्ट आएंगी उसको लेकर मैं चीफ मिनिस्टर से बैठ के बात करूंगा। तो ये कॉन्क्रीट प्रपोजल और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को नोडल एजेंसी बना के उन्होंने ये अहकाम जारी की। क्या देखते हैं कि हर एक को, जितने भी मुसलमान सरबराह लोग हैं, एमपी, एमएलए, एमएलसी के साथ साथ दूसरे सरबराह और जो शख्सियतों को इन्विटेशन दिए गए, मगर वहाँ जाके देखे तो क्या है, सिर्फ खाली एक नाचीज एक एमपी बैठा हुआ,
और 2 एमएलएस हैं। हैदराबाद तो कोई एमएलए नहीं आया समझिए, उनको ऊपर वाले ने कोई तौफीक नहीं दी, पता नहीं। तो उसके बाद जो है ये मुसलमानों में गुर्बत के बारे में, मुसलमानों में खानदगी के बारे में, और तीसरा जो है ना ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो तमाम मुफीद मशवरों को लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज आखिरी तक बैठे रहे और उसके बाद जो है ना वो रिकमेंडेशन लेके गए। अगर आज हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो हालत है, मेरे सामने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं समझिए, वो भी इस मामले में बहुत आगे आगे तो इन तमाम चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए आरिफ मोहम्मद साहब, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर हम कई मरतबा जो है ना प्राइम मिनिस्टर से और वाइस चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से। रीसेंट बात यह है कि जब 12वां 5 साला मंसूबा बन रहा था तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में पास होने का है। मालूम हुआ कि हमको वादा किया गया था प्राइम मिनिस्टर से और ये प्लानिंग कमीशन से, खुद उनकी स्टीयरिंग कमेटी 12th 5-year प्लान की, उसने रिकमेंडेशन की 44,000 करोड़ देना चाहिए 5 साल के अंदर मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट के लिए, तमाम हमाजहती डेवलपमेंट के लिए। तो हम खुश हो गए और जो है ना जाके पूरे 40-50 एमपी जाके 30-31 एमपीज थे, हम तमाम लोगों को लेके गए। प्राइम मिनिस्टर को शुक्रिया भी बोल दिया, उन्होंने झूठे मुंह शुक्रिया का जवाब भी दे दिए। बाद में देखे तो क्या है, फिर जो है ना 11-5 वाला मंसूबे में 17,000 करोड़ था, वही 17,000 करोड़। खुद उनकी स्टीयरिंग कमेटी बोलने के बावजूद भी तो वो बात पूछना जरूरी था। तो हम तमाम लोग फिर वाइस चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलुवालिया के पास जाके हम पूछे, क्या बात है साहब, क्या आपकी खुद कमेटी रिकमेंड करी? प्राइम मिनिस्टर के पास जाके हम झूठ मूठ से उनको ने शुक्रिया भी अदा कर दिए। तो बोले हम क्या करेंगे? एक बात यह है कि स्टीयरिंग कमेटी जो बोल रही है वो देना कोई ज़रूरी नहीं है, नंबर 1 पॉइंट, सराहत जो करे। नंबर 2 पॉइंट, अगर हम दिए भी तो पैसा खर्च नहीं होता। 17,000 का ऐलान हुआ था 11वां पंचशील मंसूबे में और रिलीज करे 7,000 करोड़, वहीं 10,000 करोड़ कट हो गए। और 7,000 करोड़ में कितना खर्च हुआ? तो वो 50% भी खर्च नहीं हुआ। तो उनका कहना यही है कि हम जो है पैसे मंजूर करने के बावजूद भी वो जो है ना खर्च नहीं हो रहा, फिर दे के क्या फ़ायदा? तो मैं उससे वाइस चेयरमैन साहब से पूछा, साहब इसमें कसूर ये माइनॉरिटी या मुसलमानों का है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन का है? कसूर आपके एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो आपका काम है कि व्हाट आर द वेज एंड मीन्स टू रेक्टिफाई, ये चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए वो सोचना चाहिए। सिर्फ खाली पूरा भांडा जो है ना माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों के बाद डाल के आप अपने आप को अपनी फर्ज से झटक ले रहे हैं कि हम पैसे अलाट करें, तो ये नहीं हुआ है। वो उस बात में सही बात है कि लास्ट ईयर ये 5-6 साल का जो है ना अगर हम तजिया करके देखें तो स्टेट को ये खर्चाजात के लिए जो 27 स्टेट्स को जो पैसा दिए थे उसमें से 16 स्टेट्स ऐसे इंडिया के जिन्होंने एक पैसा भी जो है ना खर्च नहीं किया। कौन पूछना है इस बात को? कौन है? कोई हमारा प्रेशर ग्रुप है? किसी को इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म है? इल्म रखने के बावजूद भी कोई पूछने की हिम्मत कर रहा है? अभी भी इनामदार साहब जो है स्कॉलरशिप के बारे में बोल रहे थे कि हाँ आंध्र प्रदेश और राजस्थान ये दोनों स्टेट हैं जो साले ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादा उनका रिकॉर्ड लास्ट ईयर अगर स्कॉलरशिप ज़्यादा तकसीम हुई तो ये 2 स्टेट में, बाकी के कई स्टेट ना बुरी तरह से नाकाम हुए। मगर आज जबकि हम इससे पहले प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि अब जो स्कॉलरशिप है मुसलमानों के लिए खुसन डिमांड ड्रिवन होगा, कोटा सिस्टम नहीं रहेगा, यानी जितने एप्लीकेशन आएंगे वो तमाम एप्लीकेशन मंजूर होंगे। ये कहते हुए रिजेक्ट नहीं करेंगे कि भाई कोटा ख़त्म हो गया और आपका एलोकेशन, वो बात नहीं होगी। मगर आज हम क्या देख रहे हैं, 3,511 करोड़ जो ना इस बजट ईयर में थी। कहा तो ये जाता है कि 12% इजाफा हुआ। वो 7 रुपये में 5 रुपये देने के बाद 5 रुपये को 7 रुपये करें तो बोल सकते हैं आसानी से हम कि भाई देखो इजाफा जो है ना 40% हो गया, बल्कि 3,000 करोड़ लास्ट टाइम का था, अब 3,511 करोड़ है। तो वो जो है 12% बढ़ गया कहते हैं।
तो 12% बढ़ गया, तो लास्ट ईयर का 3,000 करोड़ में 50% भी उसमें ना जो खर्च नहीं हुआ। तो ये चीज़ें ये देखने के बाद ये पता चलता है कि हुकूमत इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम यही प्लान कर रहे हैं, कल परसों जो पार्लियामेंट को जाना, पार्लियामेंट कल से खुल रही है, तो तमाम लोग फिर एमपीज को जमा करके फिर जाना, उनसे पूछना कि भाई डिमांड ड्रिवन बोले थे आप, मगर देखे तो 800 करोड़ में डिमांड ड्रिवन नहीं हो सकता, 16 करोड़ उसको डबल करना चाहिए जब डिमांड ड्रिवन हो सकता है। अभी भी 3 दिन पहले हमारे मिनिस्ट्री अपने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रहमान खान साहब से, अब बेचारे, हालांकि मैं मेरी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है, मगर यहाँ पार्टीबाजी नहीं है। यहाँ पर यही कि कौन काम कर रहा है, काम करने वाले को बिल्कुल बगैर कोई पार्टी को बीच में लाके हमको सराहना चाहिए। और मैं बिल्कुल बावसूस तरीके से कह सकता हूँ कि अब जो रहमान खान साहब हैं, उनको अगर पुराने जितने भी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर को अगर देखें, वो पूरे मिनिस्टर को मार के फेंक दे सकते, जो दिन रात बेचारा काम कर रहा है, रात के 10-10, 11-11 बजे तक जो बैठ रहा है, कई किस्म के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और तमाम जितने भी चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग, ये वो भला बदतर बहुत से काम जो हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ है ना नतीजा, इसका पॉजिटिव नतीजा निकलेगा। मगर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है कितना देरी में, तो वहीं पे आके अपने को रुकना पड़ा, जबकि सच्चर कमेटी ने कह दिया है कि दलितों से बदतर हालत है। दलितों को आप दे रहे हैं 41,000 करोड़, जिनसे हालत उनसे भी बदतर है उनको 3,500 करोड़। तो ये कोई लॉजिक नहीं हो सकती। तो इस लिहाज से जब तक हम लोग अपने तरफ से दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम देखें स्टैटिस्टिक्स देखें तो बहुत ही जो अपने पास जो नाखानदगी है, 52.4% जो एनरोलमेंट नहीं है कोई गांव में, शहर में 60% एनरोलमेंट सबसे हाईएस्ट है ये, और जो एनरोल होते हैं 1/3 है ना ड्रॉप आउट है, हाईएस्ट है ये। तो इतनी बिल्कुल कसमोपुर्सी की हालत है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो इसके बारे में जब तक जो है ना हम ये नहीं उठाएंगे तो वो काम होने वाला नहीं है। फिर हमारे कन्वीनर साहब 3 मिनट और टाइम दिए, शुक्रिया। तो मुझे ज़्यादा बात करने का शौक़ नहीं है समझिए, मगर दिल जल रहा बोल के चंद चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इसलिए कि ये जो है ना वादे किए जाते हैं, वादा वफाई क्यों नहीं होती, इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि हम जाके आगे बढ़ के नहीं पूछते। हम लोग अगर हम पूछें, अगर हमारा भी कोई प्रेशर ग्रुप है और उनको ये एहसास हो कि अगर हम अपनी वादा वफाई नहीं करेंगे तो लोग उनको पूछेंगे, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए दे आर ट्रिगर्ड हैप्पी। कुछ भी है, आयन वक्त के ऊपर लॉलीपॉप दे दिए, बस उसमें खुश होकर अपन मगन हो जाते, उनका नहीं कल्याण हो जाता। तो ये चल रहा है कई ज़माने से। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हम जो है ना खाली आंध्र प्रदेश क्यों ना हो और उसके साथ साथ दूसरी रियासतों में जो है ना हमको सहूलतें, एक तो सहूलतें हैं तो भी हम सहूलतों को इस्तेफादा हासिल नहीं करते। जैसा हमारे सामने अगर कॉन्स्टिट्यूशन से देखें तो कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो हमको फ़ायदा मंद है। आर्टिकल 13 है, 15 है, 21A है, 28 एंड 30 है। तो सबसे इम्पोर्टेंट 21A राइट टू एजुकेशन है। आर्टिकल 30 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फ़ायदा हम क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो ये है, जब तक इस कौम में ये शऊर नहीं आएगा कि हमारी तरक्की का इन्हिसार तालीम के ऊपर है, अगर तालीम ना हो तो हमारी तरक्की नहीं हो सकती। इस चीज़ को अगर हम मेन एजेंडा बनाकर आगे बढ़ेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हम जो है ना दूसरों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की के रास्ते पर गामजन ना हो। बस यही अपने इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। Thank you very much, Aziz Pasha Sahab. Because I'm sorry, Aziz Pasha Sahab, आपको मैं time पे थोड़ा constraint दिया, लेकिन we have so many speakers. That's the only and your passion and your concern for the community we all appreciate, and definitely the inputs which you have given are remarkable, and they are our grave issues which need to be addressed, and we cannot blink an eye on them. Abhi, again for a small pause, I would request some bouquets are to be given. I would request Mr. Jaber Patel to give a bouquet to Mr. P.A. Inamdar. He is inspired by this speech he had given here, and he wanted to, he is also an educationist. Don't go by his attire, he is not a politician. I wish he will be good institutionalist and an education, not a politician.
And I also request Mr. Please, आप आइए, you have to be educationist. Mr. Zikrur Rahman, please, he will give a bouquet. I request him also to give a bouquet to Mr. Wasi Ahmed Nomani, our guest here. Mr. Wasi Ahmed Nomani. He wants to give a bouquet also to Mr. Asif Pasha, senior leader and former minister. Yeah, it's his desire. It will make him good as an educationist. He will change his thought process, I am sure, because we have gathered here in a very non-political environment. We don't want to, get influenced by politics, but every person, every citizen of India, whichever party he belongs, has a right to express his views. And I would request him also to give a bouquet to Mr. Lal Jan Pasha, the former member of parliament and from TDP, and a great human being. Yeah. Now, again, coming back to our program, without disadvantage brings with it advantage. And some people took advantage of the power off. They have skipped. That has also happened. You have not known.